But Hareem's reaction I thought was very interesting because उसने she just made it about herself. मुझे लोगों ने ये कहा, मुझे उसने ये कहा. She's not talking about the boy who killed himself because बार-बार जो उसका अपना असद का जो कैरेक्टर है वो बार-बार कह रहा है कि देखो उनके घर में डेथ हुई है, people are not going to be. लेकिन नहीं, she's only talking about herself, which shows वो नार्सिसिस्ट है. हाँ, that's you know कि even in that हालत वो जो है शॉक तो लगा है, लेकिन उस शॉक में भी उसको जो चीज़ जो झटके में लगी है कि लोगों ने उसको घर से निकाल दिया. घर से निकाला और उसको ये चीज़ फील हो रही है कि मेरा प्लान तो ख़राब हो जाएगा. मैंने जो टीटी को शीशे में उतारा था सारी चीज़ें करके, ये तो सारा उसको वो शॉक नहीं है कि वो मर गया. मुझे लग रहा है शॉक डिफरेंट है कि ओ मेरी गेम ख़राब हो गई सारी. It's all about her future plan. I thought that was a very interesting angle, which was the last two scenes of both the episodes were very good. I think जो आप सवाल पूछ रहे थे उसमें सिर्फ यही कह सकती हूँ लोगों को कि भाई झूठ पे कोई चीज़ बेस मत करो. जो भी आप लोगों ने शादी करनी है, झूठ छुपाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज इवेंचुअली जब वो निकलेगा तो उसका अंजाम सही नहीं होना. Because lying, deceiving people you love, and especially जब इस लड़के की relationship उस लड़की के साथ इतनी अच्छी थी, he didn't have to hide and make up this stupid story कि हम bankrupt हो गए हैं और वो और सारा वो जो पहले जो था. I think that was probably one of the main points that the writer was also getting to us was that finally, thank God, something happened, something that changed the course of this repetition that we've been watching for the last 4 episodes. But yes, it was a little unexpected. मैं समझ रही थी कि टीटी के साथ कुछ होने वाला है. जो लास्ट हमने उसके ब्रेन हैमरेज की बात हो रही थी. हाँ, हम सब वो it was a good deflection. इस बच्चे को करना तो था because he was too traumatized. कब करता, कैसे करता? मेरा सवाल ये है कि टीटी लाया क्यों उसको घर? I don't understand that. So it was the final nail in the coffin. टीटी तो इसलिए लाया ना कि अच्छा मेरे बगैर शादी कर दी बेटी को. उसे तो नहीं पता ना कि उसने कहा था कि हम चलेंगे साथ. अब मैं जाके साथ चलेंगे अपना. हाँ? उसने टीटी को तो ये था ना कि मेरे बेटे की शादी कर दी मेरे बगैर इसने, तो ये उसका रिवेंज था कि मैं इसको लेके आता हूँ. Okay. So his revenge obviously didn't work out for him. It backfired. It totally backfired. So for me, I am a mix between this and this. Okay. Confused and one thumbs up. Meaning I'm a mix between the two. Because ये एक नया इमोशन बिस्मिल के एपिसोड में याद हुआ है. Because see, the next episode was just the aftermath of his death. There was nothing in it. There was nothing. The story didn't move anywhere. So, but this part is that this is for the jhatka that we all got in the perspective. मैया जी. I just find that our these scenes are very similar. ये जो हम करते हैं ना ये मैयत वाली scenes, हाँ, I just find them to be very similar. इसमें सिर्फ ये था कि Hareem was present there, and I just find those I haven't seen, unless I think Khai is the only drama that one can talk about that he did those two scenes so differently, the first death and the second death. It was so well done. And it was so महीना जी, आप रिमेंबर impactful. यही ड्रामा था जब बहरोज सब्ज़वारी का इंतकाल होता है, जो मासूमा और माँ की जो कंडीशन थी वो लग रहा था उनका भाग गया. भाई बहुत उसकी माँ ने अच्छी. कोई आंसू कुछ चीज़ कुछ तो होता है कि इतना बड़ा आपके साथ हुआ है. इट वाज लाइक तुम चली जाओ यहाँ से. थोड़ा सा जल्दबाजी. इवन मुझे ज़्यादा इमोशन माना था जब वो मासूमा बेहोश हो जाती है तो माँ इतनी परेशान कहती है तुम्हें वो मासूमा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी. मासूमा की बात है आवाज़ बोलना बहुत अच्छा था. वो हाँ. So that मुझे again अभी तक light और उस पर बहुत issue है. It's too bright, the play is just like I don't feel for a lot of the scenes because it's like sunlight on everyone. But overall not too bad. I think मुझे लगता है लड़की का जोड़ा बहुत simple था उसकी शादी पे. It was like flopping and it was very untidy and she didn't look like a दुल्हन जो होती है ना, जो तैयार होती है अपनी शादी पे. I felt that. I think Adnan Jilani's performance was very good. Masuma's lip color जब वो अंदर से बाहर आती है वो एकदम से it became red.
too bright. It was literally like rosy red pink, you know, literally from inside to out. That was a bit of. उससे क्या होगा, मर गया, फिर से लिपस्टिक लगाई होगी अंदर, फिर वो बाहर आई। हाँ, बाहर जब आई है, you know, like, but yes, you felt it's not a play where you can say, oh no, sorry, you know. So it's not that, but so I'll give it a 6. 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,800 और S47 के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 2,151, 11% बनते हैं 1.1, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए 9 महीना जी। I think she performed okay, but it wasn't impactful. I think and I'm not just talking about this sequence. I felt the whole Shaadi Wala sequence also. I felt again how it's edited, how it comes across, whether it was her. I felt that there was a very low energy rather than a slightly high energy in her. In right from the वो वाले scenes जहाँ ये आते हैं और when she's facing Adnan's character और वो उनको cross question वगैरह कर रहा है. So I felt that the energy in the performance was a little low for me. So I would say 7. 7. Very good job. ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और बिस्मिल से सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं 3,111, 12% बनते हैं 1.2, नॉट बैड, अच्छे नंबर में हैं। अब बात कर लिया साद कुरैशी यानी कि मूसा। इन एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मूसा की और साद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मतलब कहीं मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट से शिकायत है जिसने थोड़ा कलर वलर लगाया होगा इम्पैक्ट के लिए, लेकिन वो वैसे आया नहीं। और आई थिंक बाद में एडिट पे कलर ग्रेडिंग भी करते हैं तो और भी ज़्यादा वो कलर इनहेंस हो जाते हैं। नॉर्मली सेट पे आपको इतना फील नहीं होता। पहले कभी भी नहीं हुआ उसके पूरे होता ना, क्योंकि ऐसे जो एक्टर्स जो मेकअप पसंद करते हैं वो पूरे ड्रामे में ही आपको नजर आएगा, कुछ लोगों का नजर भी आता है। ऐसा कहीं नहीं था साथ का। ये सिर्फ इस सीन में हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था। बट साद ने जो पिछले सीन्स किए हैं विच लेड टू दिस वाज सो गुड। मोमल के साथ जो कमरे में उसको लेके जाता है, बात करता है और उसको समझाता है कि तुम और मैं राज़ी हैं, हम ग्रोन अप्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इजाज़त की, तुम मेरे साथ हो, शादी हो जाएगी। और बाकी हो भी जाती, वहाँ उसको सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और ये पहले क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों, मेरे माँ बाप जो हैं वो कभी अब ये शादी होने नहीं देंगे। वहाँ उसकी बेबसी और फिर गुस्सा और फिर उसके बाद ओके फ़ाइन, और वो आके जो अपनी माँ को ले जाता है, बहुत अमेजिंग था। फिर उसका रोना, जब वो रोया है ना, मैं रोई हूँ देख के, मुझे बहुत दुख हुआ उसकी। फिर वो लाइन मुझे हॉन्ट करती कि जिन 2 लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। जब दिल टूटता है ना, बड़ी आम सी बात कहते हैं दिल टूट गए, जब दिल टूटता है ना तो कुछ रहता नहीं जीने के लिए। एंड ही वाज अ सेंस। अब याद करें, ये वो मूसा है जो कि दोस्त के लिए कितना रोया था। दोस्त बीमार हो गया, उसके माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली, ये दरवाज़ा बंद करके उस वक्त रो रहा था। मुझे उस सीन की समझ आती है, इसलिए राइटर ने लिखा दिखाने के लिए बच्चा सेंसिटिव है, ये बच्चा इमोशनल है, कमज़ोर है, नर्व्स इसके नहीं ले सकते ज़्यादा, तो इसलिए इसकी बस हो गई। और वो जो सीढ़ियों से उतर के जो उसने देखा है बाप को, मासूमा को, जो एक्सप्रेशन था परफेक्ट। मुझे इतना सा कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया इसकी एक्टिंग में, मोमल की एक्टिंग में, अदनान जिलानी, दीज 3 गाइज दे वर परफेक्ट। और मेड्स के भी बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे और मामू ने भी सही रनिंग की है। तो थ्रू आउट इस जर्नी के लिए साथ यू आर अ 10, ऑल द बेस्ट। तुम बहुत आगे जाओगे, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़िंदगी दे। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। और इस कैरेक्टर को और इस ड्रामे को हिट बनाने में बेटा तुम्हारा बहुत 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 बड़ा हाथ है। यू आर अमेजिंग। क्योंकि सादा तो इसके टॉकी के ही सीन से, स्टाइल वाले सीन ही नहीं थे। इस बच्चे का हर सीन कमरे में माँ के साथ, बाप के साथ, और फिर इस ड्रामे को हिट बनाना, इस कैरेक्टर को हर कोई जानता है आज पाकिस्तान में, मूसा को। तो यू आर अ स्टार। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी
बहुत लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ नादिया फिर जज्बाती हो गए। पर्सनल लाइफ में कह रही हूँ कसम, क्योंकि मैं देख के ना वो सीन बहुत मेरे अतीका जी, तो सात मैंने कहा गुरैश। दिखाएंगे नहीं, उन्हें दिखाया तो वो मार्क नंबर्स दे दिए आपने? हाँ 10 है भाई, बच्चा 10। I liked his work. काम अच्छा था throughout the play. मेहनत की उसने. But somehow I don't know why I feel I don't get the kind of feelings I get from when a Khushal does a scene or a Ali Raza does a scene. I don't know why. I don't know. मेरी एक किसी किस्म की connection नहीं बन रही with this actor. An actor, not the character. But ये है कि he's worked very hard. मेहनत बहुत की है. कुछ scenes बहुत अच्छे थे. Something is missing. Maybe it's his voice. I think आवाज़, क्योंकि इनकी आवाज़ में एक ठहराव और गहराई नहीं आती, तो शायद इस वजह से मेरे ज़रा वो थोड़ा सा मेरे लिए डाइल्यूट हो जाता है I love his परफॉर्मेंस. I find his voice very light and I don't know what it is. I can't really pinpoint. But मेहनत की है and it's a very good role. It was a good role for him as a young actor. So I'll give him 8. 8 महीना जी। I wasn't too impressed. I feel that he's new, and I think he handled himself well. But somehow I wasn't on board with his depression, because he did go into depression, or he should have gone into depression, because to reach a level of committing suicide, that's the end level, right? So that means that there is something that's coming from the back, right? I feel that it needed to come in. अगर प्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम है और फिर हम लोगों का हीरोपन की एक प्रॉब्लम है. I feel that his dressing, the way he's looking, थोड़ी सी दाढ़ी आ जा, एक फील आती है इंसान में कि you are going through tough time. रात को तो शादी थी उसकी, दाढ़ी क्यों आई? नहीं, वो पूरे ओवरऑल की बात करेंगे, जब ओवरऑल वो ग्रेजुअली गया ना डिप्रेशन में उसकी हाँ, माँ अभी के तो साथ। शादी वादी हो रही थी, शादी के टाइम की बात नहीं करी, पहले की I'm बात। talking about overall जो है, in his voice, in his behavior, I'm not saying that he didn't try, but maybe because he's new and he has a long way to go. He has a long way to go to learn. There's a lot out there where you can learn from, lean from. And I'm not talking about us, but YouTube is open to you. So I felt that to me, for me personally, I didn't get on board of his journey that led to his suicide as much as I would like to. But the act itself, जो हुआ है, that was a shocker, and that was. But the scene Nadia's talking about, that raat ko when he came and he wept with his mother, that's probably one of the best scenes he's done in the entire play. So I'll give him a 7. 7, very good job. ऑडियंस की चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,400 और बिस्मिल सेन के हिस्से में आए हैं 2,759, 11% बनते हैं 1.1। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू। और नादिया फिर जज्बाती हो गई और देखिए इसी जज्बातीपन में ये चली भी गई थी उनके घर। मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं